امریکہ اور ایران مذاکرات کے ایک اور دور پر غور کر رہے ہیں۔ مذاکرات جمعرات کو ہو سکتے ہیں، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ رپورٹس کے مطابق مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسلام آباد سمیت دیگر مقامات کے انتخابات پر غور کیا جا رہا ہے۔ کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ اختلافات ختم کر کے جنگ کے خاتمے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی ریپبلکن رہنما ساجد طارڑ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد معاہدے کو فائنل کرنے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ اسلام آباد کا دورہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، ایران معاہدہ چاہتا ہے، ڈیل کے لیے بہت بےتاب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ہمارے درمیان بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ افزودہ یورینیم کسی طرح حاصل کر لیں گے، ایرانی بالآخر بقیہ نکات پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے کسی ملک کی مدد نہیں چاہیے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا آبنائے ہرمز کی بندش کا سلسلہ جاری رہا تو امریکہ کسی ایرانی جہاز کو بندرگاہ سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ توقع ہے ایران ہرمز کھولنے کی جانب پیش رفت کرے گا۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کو بند کر دیا۔ امریکی فوج کے مطابق ناکہ بندی علاقے میں بغیر اجازت داخل ہونے یا نکلنے والے کسی بھی جہاز کو روکا، موڑا یا قبضے میں لیا جائے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے ناکہ بندی کے دوران ایرانی فائرنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ کہا کہ ایران نے ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ چین نے امریکہ کو آبنائے ہرمز میں چینی مفادات کو نقصان پہنچانے سے متعلق خبردار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے چین کے بحری جہاز آبنائے ہرمز کے پانیوں میں آمد و رفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چین ایران کے ساتھ تجارتی اور توانائی کے معاہدے کا ہم احترام کرتے ہیں، انہیں جاری رکھے گا۔ اور آبنائے ہرمز میں بیرونی طاقتوں کی طرف کسی بھی قسم کی فوجی مداخلت بحران کو بڑھا دے گی۔ امریکہ کی جانب سے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی پر ایرانی وزارت دفاع کا رد عمل۔ ترجمان کا خبردار کرتے ہوئے کہنا ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی اقدام سے عالمی توانائی کی سلامتی کو غیر مستحکم کر دے گا۔ ایرانی فوج نے جہازوں پر امریکی پابندیوں کو قذاقی قرار دے دیا۔ کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ ہوا تو نہ صرف خلیج عمان بلکہ خلیج کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی۔ ہمیں صحیح لوگوں کی کال آئی تھی، ایران معاہدہ چاہتا ہے، ڈیل کے لیے بہت بےتاب ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہو سکتے، ہمارے درمیان بہت سی چیزوں پر اتفاق ہو گیا تھا لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوئے۔ یورینیم کے معاملے پر بھی اتفاق نہیں ہو سکا، افزودہ یورینیم کسی طرح حاصل کر لیں گے، ایرانی بلائے خریفکہ نکات پر بھی راضی ہو جائیں گے۔ ایران حقیقت میں دنیا کو بلیک میل کر رہا ہے، امریکہ ایسا نہیں ہونے دے گا۔ کئی ممالک نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی میں مدد کی پیشکش کی، کسی ملک کی مدد نہیں چاہیے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا فیصلہ تہران کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی اسلام آباد مذاکرات میں پیش رفت کی تصدیق۔ کہا اب ایران کو لچک دکھانا ہوگی اور امریکی مطالبات تسلیم کرنے ہوں گے۔ جے ڈی وینس نے ایرانی حکومت کی جانب سے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی روکنے کو معاشی دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا یہ سلسلہ جاری رہا تو امریکہ بھی پھر کسی ایرانی جہاز کو بندرگاہ سے باہر نکلنے نہیں دے گا۔ توقع ہے ایران ہرمز کھولنے کی جانب سے پیش رفت کرے گا۔ ایران سے افزودہ یورینیم نکالنا چاہتے ہیں۔ لبنان اسرائیل مذاکرات آج واشنگٹن میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی لبنان اسرائیل مذاکرات میں مارکو روبیو کی شرکت کی تصدیق۔ لبنان اور اسرائیل کے سفیروں کے درمیان ملاقات رات 8:30 بجے امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر میں ہوگی۔ اسرائیل کے لبنان پر حملوں میں اب تک 2000 سے زائد افراد جاں بحق، 6500 سے زیادہ زخمی ہو چکے۔ امریکہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر دی۔ نیٹو کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے امریکی منصوبے کا حصہ بننے سے انکار۔
यूरोपीय इत्तेहादियों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को लाल झंडी दिखा दी। नेटो का कहना है कि लड़ाई खत्म होने के बाद सूरत हाल में मुदाखलत करेंगे। अमरीकी सदर और नेटो इत्तेहादियों में मजीद तनाव का खदशा बढ़ गया। आबने हुर्मुज़ को खुला रखना दुनिया के मुश्तरका मफाद में है। तवानाई का तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी ज़रूरी है। फ़िलिपाइन के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीन का रद्द-ए-अमल आ गया। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है फ़िलिपाइन तहम्मुल और ज़ब्त का मुज़ाहरा करें। उम्मीद है फ़िलिपाइन सीज़ फायर मुआहदे की पासदारी करेंगे। आबना हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी की दुनिया भर में शदीद मुखालफत। बरतानिया, रूस, तुर्किया, जापान, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक यह सुबह हो गए। बरतानिया ने साफ कह दिया कि वो अमरीकी नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। मुतालबा किया कि आबने हुर्मुज़ के लिए कोई टूल आयद नहीं होना चाहिए। रूस ने कहा कि हुर्मुज़ की बंदिश आलमी मईशत के लिए नुकसानदेह होगी। तुर्की और जापान का तनाज़े को सिफारतकारी से हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का हुर्मुज़ की आज़ादी यकीनी बनाने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर आज़म ने कहा कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात दोबारा शुरू होते देखना चाहते हैं। मामलात कुछ थोड़े बहुत कहीं अटके हुए हैं, उनको हल कराने के लिए पूरी कोशिश जारी है। आज सीज़ फायर अभी भी कायम है। फील्ड मार्शल और उनकी टीम ने वो रातों को जागे, पूरी रात जागे हुए, और बास लम्हात ऐसे आए, बात टूटते टूटते वो जुड़ती रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम को, उन दो ममालिक को हमने, पाकिस्तान ने उनको बिठाया। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए, न जाने हज़ारों मासूम, लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिया, इज़्ज़त अता फरमाई। पाकिस्तान की कोशिशों की बदौलत सीज़ फायर आज भी बरकरार है। अटके हुए मामलात हल कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। ईरान और अमरीका की 47 साल बाद आला तरीन सतह पर बातचीत हुई। अमरीकी और ईरानी वफूद हमारी दरख्वास्त पर पाकिस्तान आए। शहबाज शरीफ का फील्ड मार्शल और उनकी टीम को शाबाश और खिराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन कोशिशों के सिलसिले में पूरी रात जागे। मुज़ाकरात में ऐसी सूरत हाल भी आई कि बात टूटते टूटते जुड़ी। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत से जंग बंद हुई। आर्जी सीज़ फायर किया गया। ईरानी बंदरगाहों को खतरा हुआ तो दिफा करेंगे। खलीज और खलीज ओमान की बंदरगाहें भी महफूज नहीं रहेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान का कहना है कि आबना हुर्मुज़ कंट्रोल स्मार्ट मैनेजमेंट में है। फौजी जहाज की आमद सीज़ फायर को तोड़ना तस्वर होगी। आबी गुजरगाह के करीब आने वाले किसी भी फौजी जहाज से सख्ती से निपटा जाएगा। अमरीकियों ने एक बार फिर हमारे इरादों का इम्तिहान लिया तो उन्हें बड़ा सबक सिखाएंगे। हुर्मुज़ की नाकाबंदी पर अमरीकी अवाम पेट्रोल की मौजूदा कीमतों को तरसेंगे। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने एक तस्वीर भी शेयर कर दी। तस्वीर में व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द मौजूद पेट्रोल पंप्स पर मौजूद नर्ख लिखे दिखाई दिए गए। ईरान का आबना हुर्मुज़ में ट्रांजिट टोल की जगह सर्विस फीस वसूल करने का मंसूबा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान मुतल्लिका ममालिक के साथ दो तरफा मुआहदा करना चाहता है। ईरान चाहता है कि जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के बदले फीस अदा की जाए। मंसूबे में ओमान को इंतजामी किरदार देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। चीन ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान के तामीरी सिफारती किरदार की मुकम्मल हिमायत जारी रखने का इयादा किया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के अज़्म का इयादा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सऊदी हममंसब को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं में इलाकाई अमूर पर भी बातचीत। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी और कतरी वज़राए ख़ारजा का भी राब्ता हुआ। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया।
खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती काविशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बुध से सऊदी अरब और तुर्किया का हम दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 15 अप्रैल को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना होंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के बाद आइंदा के लाहेमल पर तबादला ख्याल होगा। शहबाज शरीफ सऊदी अरब से तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। ईरान मुतवाज़िन और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। अमरीका आलमी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीका को अपनी आमिराना रविश छोड़ने का कह दिया। अमरीका के साथ मुआहदा दस्तरस से बाहर नहीं। अमरीका से मुआहदा मुमकिन है अगर वो आमरीत तर्क करते। अमरीका ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम करे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पुरएतमाद कहते हैं दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात के बाद इत्मीनान का इजहार किया जा रहा है। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई, सिर्फ मुस्बत बातें ही सामने आ रही हैं। अमरीका और ईरान में चंद रोज़ बाद बातचीत का एक और राउंड हो सकता है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीका और ईरान में सफारतकारी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए। इलाकाई ममालिक दोबारा मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। जंगबंदी में मज़ीद तोसी की कोशिश भी की जा रही है। अमरीका ईरान के मुख्तलिफ बयानात के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा तेल की खपत और ज़खायर की मुस्तकिल निगरानी के बायस बहरान पैदा नहीं हुआ। अवामी रिलीफ के इक़दाम जारी रहेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा। स्टेडियम में सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सिंध पुलिस और रेंजर्स के सिक्योरिटी इंतजामात को सराहा गया। एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो FIA को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है, वो करप्शन है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ और हमारी पूरी टीम जो यहाँ बैठी हुई है ये आपसे वादा कर रही है कि आपके हर इशू के लिए हम हर मुमकिन हद तक जाएंगे। लेकिन आपको एक वादा करना है कि करप्शन को FIA से ख़त्म करनी है। अगर उसमें कोई पाया गया तो उसके लिए कोई माफ़ी नहीं। वो अपना डिसीजन कर ले, वो उसने कहीं और जाना है चला जाए, डेपुटेशन में किसी और महकमे में जाना है चला जाए। इस इदारे में करप्शन करना, इस चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। FIA में करप्शन पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कोई अफसर करप्शन में मुलविस पाया गया तो उसको निशान इबरत बना दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वार्निंग। कहते हैं करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आज़म से वादा किया था कि FIA को बेहतरीन इदारा बनाएंगे। FIA को जदीद खतूत पर इस्तवार कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का FIA के 25 शुहदा के लवाहिकीन के लिए प्लॉटों का ऐलान। लाहौर में गैस बहरान आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे से तजावुज़ कर गया। सुई गैस कंपनी के सिस्टम पर बिजली किल्लत से लोड शेडिंग में इजाफा रिकॉर्ड। कंपनी ने नाश्ता और शाम को गैस फराहमी का दौरानिया मजीद कम कर दिया। सार्फिन ने कंप्रेसर चलाना शुरू कर दिए। और PSL में पेशावर ज़ल्मी की एक और कामयाबी। मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त दे दी। पेशावर ज़ल्मी ने 196 रन बनाए। हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 172 रन बना सकी। पेशावर ज़ल्मी 11 पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त।